everyone, welcome to this class. Today we'll talk about oxoacids of some compounds, and here are some properties or criteria to learn about oxoacids. First we'll learn general discussion on oxoacids. Second we'll learn about naming the oxoacids. Third we'll discuss structure and bonding. At last we'll learn properties. Okay, so let's talk about on the topic oxoacids. By the way, what does it mean oxoacids? Oxoacids are those acids which contain hydrogen element, oxygen element and other element. So now what did I say? Oxoacids are those acids which contain hydrogen element, oxygen element and other elements. For example, we can take H3PO4, that is phosphoric acid. In this phosphoric acid, we can see here hydrogen element is present, oxygen element is present, and in the form of other element, here it is present as phosphorus. So another example we can take HNO3, that is also oxoacids of nitrogen. So it is called nitric acid. In this nitric acid also, the element is present as hydrogen, oxygen and as other element here it is present as nitrogen. So while writing the formula of oxoacids, we can write first hydrogen atom, then nitrogen atom as other element and oxygen. So at last we can conclude this general discussion on oxoacids. We can write here hydrogen as first element and central element we can denote as a Z element, and at last we can write here oxygen element. And while we are studying about oxoacids of P block element, where the central atom can be carbon, nitrogen, phosphorus, chlorine and sulfur. So now let's move forward. We'll study the oxoacids and of phosphorus. There are number of phosphorus oxoacids which are here H3PO4, H3PO3, H3PO2. Most common oxoacid is H3PO4, which has its name is phosphoric acid, and this acid has name phosphorus acid. For this acid, phosphorus acid. Similarly, we know H4P2O6, that is hypophosphoric acid. Again H4P2O7, that is pyrophosphoric acid. At last H4P2O8, this is
peroxo phosphoric acid. These are the name of oxoacids of phosphorus. Let's learn about the rules of their naming. So the most common example of this phosphorus element, the oxoacid is H3PO4. This is phosphoric acid. While removing one oxygen, we get H3PO3. From here, phosphoric acid contains 4 oxygen element. When we remove one oxygen, we get H3PO3, which is phosphorus acid. Then again, if we remove 2 oxygen element from this oxoacid, we get H3PO2, which is hypophosphorus acid. Now, when we add in these oxoacids of phosphorus, one hydrogen element and another phosphorus and another 2 oxygen, we get H4P2O6, which is hypophosphoric acid. And again, if we add in these oxoacids one hydrogen and one phosphorus and 3 oxygen, we get H4P2O7. If we add again one hydrogen, one phosphorus and 4 oxygen to this oxoacid, we get H4P2O8. So oxoacid of phosphorus का नोमेनक्लेचर हम कह सकते हैं कि इस फास्फोरिक एसिड से जब एक ऑक्सीजन को निकालें तो हमें क्या मिलेंगे H3PO3, और इसी ऑक्सोएसिड से जब 2 ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे H3PO2. So far we have covered the nomenclature of oxoacids and formula of the oxoacids. Now we'll talk about the structure of the oxoacids of phosphorus. ऑक्सोएसिड्स ऑफ फास्फोरस का स्ट्रक्चर को जानने से पहले हमें 2 टर्म को समझना आवश्यक है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट. ये वैलेंसी होता क्या है? वैलेंसी हमें किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के जो लास्ट शेल में जो बचे इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं. उसी से संबंधित ये क्या है? वैलेंसी. सो फास्फोरस का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया जाता है तो किस तरह से 1s2 2s2 2p6 3 2 and 3p3. Here we have 6 2 14 12 3 15. यहाँ पर ये जो 3sp और 3p है जो आउटर मोस्ट
शेल है जहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है जो फास्फोरस का वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फास्फोरस हैज वैलेंसी ऑफ 5 at the same time we can differentiate between valency and oxidation state while taking PCl3 ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हम देख सकते हैं कि क्लोरीन फास्फोरस से कैसे अटैच है, ये इस तरह से अटैच है। और इस फास्फोरस के पास हमें पहले से पता है कि इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस के रूप में, और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं बॉन्डिंग में, बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ फास्फोरस के पास जब 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा चुका है, तो बचा कितना बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी बचा करके रखा हुआ है। तो इस फास्फोरस के पास अब हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होंगे 1 2 3 प्लस ऑक्सीडेशन इज 3। पीछे हमने PCl3 का एग्जांपल लेकर के उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश कर रहा था। हम इनको मैथमेटिक्स के फॉर्मूला के अनुसार या इक्वेशन के अनुसार हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल के रूप में PCl3 है, और जब हम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन निकालना चाह रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, तो हम उसके लिए क्या नोट कर सकते हैं X, और पहले से हमें पता है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो हम इसको एक इक्वेशन के रूप में अरेंज करते हैं। सबसे पहले फास्फोरस के लिए हम क्या नोट करते हैं X, और क्लोरीन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -1, और जबकि क्लोरीन का एलिमेंट कितना है यहाँ पर 3, और ये इसको इक्वेशन के रूप में हम सेट कर देंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा -3 प्लस x। अब इस -3 को इक्वेशन को उस तरफ ले जाए तो हमें क्या मिलेगा +3, जो कि इस तरह से। तो हमारे पास फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +3। उसी प्रकार जब हम ऑक्सो एसिड्स का स्टडी कर रहे हैं तो हम इनका एक एग्जांपल के रूप में ले लें। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो क्या है H3PO4। अब इस ऑक्सो एसिड में हम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कोशिश करेंगे। उसी तरह जिस प्रकार हमने PCl3 का निकाला है, हम P के लिए क्या डिनोट करेंगे X, और ऑक्सीजन का हमें पहले से पता है -2, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब इनको हम एक मैथमेटिकल रिलेशन में सेट करते हैं, तो वो इस तरह से है +1 फास्फोरस के लिए X, और ऑक्सीजन के लिए 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एलिमेंट कितने हैं 3, तो इस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और फास्फोरस के लिए एज इट इज, और ऑक्सीजन के लिए हम -2 इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 एलिमेंट है इसलिए इनको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इनको जब सॉल्व करते हैं तो हम क्या मिलता है +3 प्लस x, और 4 2 या 8, ये -8 के रूप में मिलता है। अब यहां पर इनको हम क्या करते हैं सोल्व कर ले, तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेंगे +3 - 8 इक्वल्स टू -5, और x। जब 5 को उस तरफ ले जाए तो हमें क्या मिलेंगे +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फास्फोरस का इस ऑक्सो एसिड H3PO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हैं 5। अब इसी ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रयोग करते हुए हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे, और वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर का यूज करते हुए। बेसिकली फास्फोरस का
ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, +3 और -3 भी होता है। तो हमने यहाँ पर दो ऑक्सीडेशन को देख चुका है, +5 और +3 को। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर को। हमारे पास ऑक्सो एसिड्स फास्फोरस के 6 ऑक्सो एसिड्स थे। जो सबसे पहला क्या हो सकता है, जो कि कॉमन है, H3PO4। इनका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। इसी प्रकार H3PO3 फिर H3PO2, इनका नाम फास्फोरस एसिड। और इनका हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय हमें 3 चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के लिए स्ट्रक्चर हम जब ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे लिए कंडीशन क्या हो सकती है। कंडीशन पहला, ऑक्सो एसिड मस्ट हैव at least 1 POO bond. Oxo acid must have at least 1 POH bond. Oxo acid must have, number 3, at least 1 pH bond. So, जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो ऑक्सो एसिड्स और फास्फोरस के लिए, तो हमें इन 3 चीजों को जानना आवश्यक है, ध्यान में रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले क्या है, फास्फोरस के पास डबल बॉन्डेड होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ, और फास्फोरस का सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डेड होता है। और उसी प्रकार फास्फोरस भी क्या होंगे, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा। तो ये सारे 3 जो कंटेंट है, ये फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। तो आइए इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। हमने शुरू में बता रखा था कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, जो कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी +5 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रयोग करते हुए हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट हम क्या लिखेंगे, अब हमारा फास्फोरस है, इनका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करना हो तो फास्फोरस सबसे पहले होंगे, और इनके चारों ओर ऑक्सीजन को सबसे पहले क्या करेंगे, सराउंड कराएंगे। जो इस प्रकार से हमारे पास H3PO4 में 4 ऑक्सीजन, इसलिए हम इनको चारों तरफ 4 ऑक्सीजन के साथ में सराउंड कर देंगे, जो ये इस तरह से है। अब क्या करना है कि हमारा पहला कंडीशन क्या है कि फास्फोरस का कम से कम एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में होना। तो ये इस तरह से हो सकता है, फास्फोरस डबल बॉन्ड, फिर उसी तरह एटलीस्ट 1 वॉइस बॉन्ड होगा, और इस तरह से ऑक्सीजन के साथ में हम जब बॉन्ड पार्टिसिपेट कराएं तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें क्या है कि बाकी बचे ऑक्सीजन हैं जो 3, उनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। तो ये क्या करेंगे, 2 बॉन्ड बनाने की इनका क्षमता होती है हाइड्रोजन का। तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और दूसरा बॉन्ड, एक बॉन्ड फास्फोरस के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तो जो इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार हम इस 3PO3 को स्ट्रक्चर के रूप में इंटरप्रेट करेंगे तो क्या होंगे, P। अब P के चारों ऑक्सीजन कितने हैं, 3, हम 3 डिनोट कर लेंगे।
पहला क्या है कंडीशन, दूसरा कंडीशन फुलफिल करते हुए इस तरह से। अब इस फास्फोरस के पास 4 बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 3 है, जबकि बॉन्ड कितने पार्टिसिपेट कितने कर चुके हैं 3, तो एक और हम बॉन्ड पार्टिसिपेट करा सकते हैं हाइड्रोजन के साथ। अब कंप्लीट हुआ इस फास्फोरस का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बाकी बचे जो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनाना है वो क्या है, इस तरह से होगा और ये इस तरह से। इसी प्रकार H3PO2 के लिए P इस तरह से हमने फास्फोरस के लिए जो ऑक्सीजेंस हैं उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाए। अब इनका एसिडिटी देखेंगे, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो सकता है तो ये तीनों एसिड्स, नाम ही तो है इनका ऑक्सो एसिड्स। तब इनका एसिडिटी को जब डिफरेंशिएट किया जाए या फिर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक एसिड कौन हो सकता है, इसमें एसिडिक जो है एसिड ऑक्सो एसिड है वो कौन हो सकता है, तो ये नंबर ऑफ OH पर डिपेंड करता है। इन तीनों ऑक्सो एसिड्स में हम नंबर ऑफ OH बॉन्ड को काउंट करेंगे और जिनके पास ज्यादा OH बॉन्ड होगा वही सबसे क्या होगा ऑक्सो सबसे ज्यादा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इस H3PO2 के पास OH कितना है 1 है और इस H3PO3 के पास 2 है और इसके पास 3 है। तो इस तरह से ये ऑक्सो एसिड भी इनका नाम दूसरा नाम हो सकता है मोनो ऑक्सो एसिड ऑफ मोनो एसिड ऑफ फास्फोरस, डाइबेसिक एसिड ऑफ फास्फोरस और तीसरा ये H3PO4 जिसको हम कह सकते हैं ट्राइबेसिक एसिड ऑफ फास्फोरस, क्योंकि OH ग्रुप कितने हैं 3 है। और हमने पहले बता रखा था कि इन तीनों एसिड्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ OH बॉन्ड पर। तो सबसे ज्यादा OH बॉन्ड H3PO4 पे है, तो इस तरह से हो सकता है H3PO2 is less acidic than H3PO3 which is again less than H3PO4। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से इंक्रीज करती है। अब आगे हम बाकी बचे जो ऑक्सो एसिड्स है उनका भी नाम लिखने का प्रयास करेंगे या फिर स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करेंगे। हमने पहले ही 3 कर चुका, अब 3 बाकी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस क्या हो सकते हैं H4P2O6 H2P2O7 फिर H4 P4 P2O8 इनका नाम आपको बताया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड। अब इनका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। हमें पहले पता है कि फास्फोरस के चारों ओर ऑक्सीजन को सराउंड कराएंगे। बाकी बचे ऑक्सो एसिड्स को फिर से हम उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो वो बाकी बचे कौन से ऑक्सो एसिड्स होंगे, वो H4P2O6 होंगे, H4P2O7 और फिर लास्ट में H4P2O8।
इनका नाम भी साथ ही साथ लिखते चले। ये क्या है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये क्या है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और ये आगे है पैरोक्सोफॉस्फोरिक एसिड। आप ये नाम पूरा कर लेंगे। अब इनका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, हमारे पास क्या है? दो फास्फोरस के पास सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक डबल बॉन्ड बना लें और इनको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ सेटिस्फाई कराएंगे। और इस तरह से ऑक्सीजन कितने होंगे हमारे पास? 6। तो हम इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लें पहले। 4, 6। और हर एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन के लेवल में सेटिस्फाई कर देंगे। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया इनका स्ट्रक्चर है H4P2O6। इनके लिए इसी प्रकार हर एक फास्फोरस को एक एक ऑक्सीजन देकर के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि हमारे पास 7 ऑक्सीजन है तो उनको हम इस तरह से सेटिस्फाई कराते चलें। फास्फोरस इस तरह से करते होंगे, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर। P2 कंप्लीट। 7 कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब बाकी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हम एक हाइड्रोजन से लेवल सेटिस्फाई करेंगे इस तरह से। सिमिलरली इनके लिए भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। P कितने हैं? ये इस तरह से डबल बॉन्ड। और 8 ऑक्सीजन को हमें क्या करना है? सेटिस्फाई करना। तो जब तक यहाँ हमने अब तक कितने ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर चुका? 3 3 6 और 2। इस तरह से इस ऑक्सीजन एसिड में ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करते। बाकी बचे जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है उनको हम एक एक हाइड्रोजन देकर के सेटिस्फाई कराते हैं। तो इस तरह से भी पूरे हो जाएगा। मतलब इस पैरोक्सोफॉस्फोरिक एसिड के लिए हाइड्रोजन कितने? 4, ऑक्सीजन कितने? 8। हम वो इस तरह से हमने क्या कर रखा? अरेंज कर दिया, जो कि उनका स्ट्रक्चर इस तरह से हम देख सकते हैं। सो अब तक हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के टॉपिक में उनका नोमेनक्लेचर जाना, उन्होंने रूल्स क्या क्या होते हैं उनको देखने का प्रयास किया था। और सेकेंडली इनका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को जानने का प्रयास किया। साथ ही साथ यहाँ पर इनका एसिडिक स्ट्रेंथ को भी जानने का प्रयास किया, जो कि एक कंपैरेटिव स्टडी था। अब बाकी बचे जो प्रॉपर्टी है, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रॉपर्टी, इनका देखेंगे। और एक और प्रॉपर्टी होती है, वो है एसिडिटी और बेसिसिटी। और लास्ट में क्या देखेंगे? इनका एप्लीकेशन, इनका यूज कहाँ होता है, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बस आज के लिए इतनी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस क्लास से 3-4 चीजें अवश्य सीखा होगा। अगले वीडियो के लिए मैं फिर लेकर आऊंगा इसी तरह। आज के लिए इतनी। थैंक यू।